اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ناظرین، میں میر مہدی میر، آج ہمارے ساتھ جو مہمان بنے ہوئے ہیں وہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ غلام حسین موتو صاحب ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یونٹی پہ رہے گا، اتحاد کے حوالے سے رہے گا۔ پہلے ہم مولانا صاحب سے سلام پیش کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، ہمارا پہلا سوال یہ رہے گا آپ سے کہ یونٹی دراصل کیا ہے، اتحاد لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ اتحاد اور وحدت یہ انسان کے لیے نا آشنا نہیں ہے۔ مل جل کر کام کرنا، بھائی چارگی کے ساتھ رہنا اور دشمنوں کے مقابلے میں یونائٹ ہونا اور ان کی سازشوں کے مقابلے میں یکجہت ہو کر، یکجٹ ہو کر، متحد ہو کر ان کا مقابلہ کرنا، اور آپس میں جو چیزیں اختلافات ایجاد کرتی ہیں، نفرتیں پھیلاتی ہے اور انسانی بھائی چارے کو خطرے میں ڈالتی ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنے کو ہم اتحاد کہہ سکتے ہیں، اور ان چیزوں سے دوری کرنے کو ہم یونائٹی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے دینی پیشواؤں نے اتحاد کے بارے میں فرمایا، اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ تمام مسلمان ایک مذہب، ایک مسلک اختیار کریں، شیعہ شیعہ ہی رہے، سنی سنی ہی رہے، لیکن شیعہ اس طرح شیعہ رہے کہ وہ اہل سنت بھائیوں کی دل آزاری نہ کرے، اور سنی اس طرح سنی رہے کہ وہ شیعہ بھائیوں کی دل آزاری نہ کرے، اور جو ہمارے مشترک اہداف ہے، جو ہمارے مشترک گولز ہیں، ان کی ہم مل جل کر آبیاری کریں، اور جو ہمارے مشترکہ چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو ہم مل جل کر کا مقابلہ کریں، جو ہمارے مشترک دشمن ہیں ان کا ہم مل جل کر مقابلہ کریں، اور ان دشمنوں کا ایکجہت ہو کر ان کے سامنے ہم کیا ڈٹ جائیں، اس کو ہم اتحاد کہتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، ہمارا یہ کوشچن رہتا ہے کہ جو ابھی تنظیمیں ہیں جیسے MI6 ہے، جیسے CIA ہے، یہ تنظیمیں ہیں جو اتحاد کو بڑھاوا نہیں دیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیوں نہیں اتحاد کروانا چاہتے ہیں؟ ان کا کیا؟ قرآن نے واضح الفاظ میں کہا کہ کچھ لوگ مسلمانوں سے، مسلمانوں کے بھائی چارے سے، مسلمانوں کی ترقی سے، مسلمانوں کی کامیابی سے خوش نہیں ہوں گے۔ قرآن نے واضح انداز میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک وہ تمہیں یہود و نصارہ نہ بنائیں۔ قرآن نے واضح الفاظ میں کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، کہ تم لوگ اپنے سخت ترین دشمن یہودیوں کو پاؤ گے۔ اشد الناس عداوتاً، عداوت کے لحاظ سے، دشمنی کے لحاظ سے جو تمہارے سخت ترین دشمن ہوں گے وہ یہود ہوں گے۔ تو دشمن شناسی قرآن کا ایک ٹاپک ہے، اور مسلمانوں کو قرآن نے وارننگ دے رکھی ہے، چنوتی دے رکھی ہے، خبردار کر کے رکھا ہے، الارم بجا کے رکھا ہے کہ ان کی دشمنی سے ڈرو، ان کی دوستی میں بھی دشمنی چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے امام خمینی فرماتے تھے امریکہ کی دشمنی سے زیادہ امریکہ کی دوستی، یہ دوستی کا ہاتھ بڑھا کر نہ جانے کتنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب قرآن نے ہمیں دشمنوں سے آشنا کیا ہے تو یہ دشمن خاموش نہیں بیٹھے گا۔ جہاں بھی مسلمان ہوں گے، جہاں بھی اسلام ہوگا، جہاں بھی مسلمانوں کے اہداف ہوں گے، یہ ان کے درمیان ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کا راستہ روکنے کے لیے، ان کی کامیابیوں کا راستہ روکنے کے لیے، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اپنی ساری انرجی کیا استعمال انہوں نے کی ہے، کر رہے ہیں ان کا وہ کرنے کے لیے۔ یہ جو MI6 ہے یا اور دوسرے وہ گروپس ہے، یہ تنظیمیں ہیں جو اس وقت اسلام دشمنی کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ اسلام جو بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں شیعہ سنی میں، کہیں کہیں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ اکثر شیعہ سنی میں اتحاد ہے، بھائی چارگی کی فضا ہے، لیکن کہیں کہیں پر جب آپ دیکھ رہے ہیں تفریقے کی فضا قائم ہو رہی ہے۔ اس کے روٹس اگر آپ دیکھیں گے، اس کے روٹس MI6 اور
इस तरह की इस्लाम दुश्मन तंजीमों से जाकर मिलती है। उनकी गुट्टी में, उनकी प्लानिंग में, उनकी स्ट्रैटेजी में है, उनके अहदाफ में है मुसलमानों को कमज़ोर करना। वो कभी नहीं देखेंगे कि मुसलमान ताकतवर हो, वो कभी नहीं देखेंगे मुसलमान मुक़्तदिर और पावरफुल हो। उनके लिए एक ताकतवर मुसलमान नाकाबिल बर्दाश्त है, उनके लिए एक मुअज़्ज़ज़ मुसलमान नाकाबिल बर्दाश्त है, उनके लिए पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने वाला मुसलमान नाकाबिल बर्दाश्त है। लिहाजा वो उनके सुकून को तोड़ने के लिए, उनकी कामयाबियों का रास्ता रोकने के लिए, उनकी तरक्की का रास्ता रोकने के लिए हर दम मशरूफ़ है, हर दम मशरूफ़ अमल है। मौलाना साहब, क्या वजह है कि दुनिया में अगर देखा जाए, कहीं पर भी देखा जाए कि एक मुसलमान शिकार होता है, चाहे हम कश्मीर देखें, चाहे लेबनान देखें, फ़लस्तीन देखें, सीरिया देखें, नाइजीरिया देखें, एक मुसलमान शिकार हो रहा है। क्यों मुसलमान, अगर मुसलमान इत्तेहाद पे है तो क्यों एक प्लेटफॉर्म पे ये क्यों नहीं आ रहे हैं और ये क्यों नहीं इसके खिलाफ की जा रही है? जी, आपने अच्छा इशारा किया है। बदकिस्मती से मुसलमानों के दुश्मन मुत्तहिद है और खुद मुसलमान बिखरे हुए हैं। मुसलमान मुल्क बिखरे हुए हैं, मुसलमान कंट्रीज़ बिखरी हुई है। उसकी वजह यह है कि एक लंबी गुफ्तगू है ये, तो मुसलमान कंट्रीज़ में इन्हीं दुश्मनों ने, इन्हीं तंजीमों ने, जिनकी तरफ आपने इशारा किया, अपना इतना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है। यहूदियों ने अरब कंट्रीज़ में इतना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, यहूदियों ने मुस्लिम कंट्रीज़ में इतना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है कि अब वहाँ की हुकूमतें कठपुतली हुकूमतें हैं, वो अमेरिका की पिट्ठू हुकूमतें हैं। उनका इख्तियार अपने हाथ में नहीं है, वो गुलाम है, वो उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। सारा जो उनका जो प्लान बन रहा है वो दुश्मनान इस्लाम के हाथों में है। अभी आपने देखा ट्रंप ने अपना इलेक्शन जीतने के लिए मुसलमानों को, मुसलमान कंट्रीज़ को प्रेशराइज किया कि वो इसराइल को के साथ अपने ताल्लुकात बरकरार करे, इसराइल को तस्लीम करे, और उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया। कुछ लोगों ने अलग ऐलान तस्लीम किया और कुछ लोग खुफिया तरीके से क्या इसराइल के साथ अपने राब्ते बरकरार किए हुए हैं। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम उम्मतों में इत्तेहाद है, लेकिन इस इत्तेहाद की तहरीक को, इस इत्तेहाद और भाईचारगी को अभी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी जदोजहद करने की ज़रूरत है। इमाम खुमैनी, इमाम खामनेई और इस तरह की जो लीडरशिप है, शिया हो, सुन्नियों की जो मुखलिस लीडरशिप है, उन्होंने हमेशा इत्तेहाद पर जोर दिया है। मिल्लतों के दरमियान जब इत्तेहाद कायम होगा तो एक दिन इंशाअल्लाह ये जो पिट्ठू हुकूमतें हैं, ये जो कठपुतली हुकूमतें हैं, इंशाअल्लाह इनका साया भी ख़त्म हो जाएगा और इन दुश्मनान इस्लाम का भी साया ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का ये जो कहना है कि सुन्नी हमारे खाली नफ्सो जान ही नहीं है बल्कि हमारे भाई भी है, तो इस पे आप थोड़ा सा वजाहत कीजिए। जी, ये आयतुल्लाह वही बात है कि ये जो मुखलिस लीडरशिप है, शियों की हो या सुन्नियों की, जो मुसलमानों का दर्द समझते हैं, जो मुसलमानों की परेशानी को समझते हैं, जिनको पता है कि अगर हम आपस में दस्तों गिरेबान रहेंगे, अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो न शिया की जीत है न सुन्नी की जीत है, बल्कि जीत दुश्मनान इस्लाम की है। जिनको ये पता है कि हमारी आपसी लड़ाई में न हम फतह से हमकनार हो रहे हैं और न शिया फतह से हमकनार हो रहा है, न सुन्नी फतह से हमकनार हो रहा है, बल्कि दुश्मनान इस्लाम यहूद नसरा फतह से हमकनार हो रहे हैं, तो वो मुखलिस क़यादत बार बार इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाए। आयतुल्लाह सिस्तानी ने ये जुमला उस वक्त जब इराक़ में तफरका अपने औज पर था, फिरका वाराना लड़ाइयाँ अपने औज पर थी, उस ज़माने में आयतुल्लाह सिस्तानी ने ये जुमला कहा जब उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की गई कि आप फतवा दे अहले सुन्नत भाइयों के ख़िलाफ़, तो उस वक्त आयतुल्लाह सिस्तानी ने ये कहा, ये जो हमारे अहले सुन्नत भाई, ये सिर्फ हमारी जान नहीं है, ये हमारी सांसें हैं, हमारे नफ्स हैं, हम एक हैं, हम इनके खिलाफ कोई फतवा नहीं दे सकते हैं। हम और उनका रास्ता एक है, हमारी और उनकी मंजिल एक है, हमारा और उनका मकसद एक है, किबला एक है, पैगंबर एक है, किताब एक है। मौलाना साहब, आखिरी सवाल आपकी खिदमत में अर्ज़ रहेगा, आपकी नज़र में उलमाए हक जो कश्मीर मुस्लिम उम्मा के हैं, कश्मीर के, वो एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए या आए हुए हैं?
देखिए, इसमें तो की कोई छुपी बात नहीं है, इख्तलाफात है। कहीं पर ये इख्तलाफ तरीक़ाकार का इख्तलाफ है, कहीं पर ये इख्तलाफ नज़रियात का इख्तलाफ है, उसूलों का इख्तलाफ है, और बुनियादी मसाइल के राह हल के सिलसिले में इख्तलाफात है। आहिस्ता आहिस्ता इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम हो रही है। इंशाअल्लाह हम अलबत्ता इस इत्तेहाद की फ़िज़ा को और वसअत के साथ कायम करने की ज़रूरत है। इस इत्तेहाद की तहरीक को, इस इत्तेहाद की नहज को, इस इत्तेहाद की कोशिशों को हमें तेज़ से तेज़ करने की ज़रूरत है। और इस चूँकि जो हमारे ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही है, सिर्फ मुसलमानान कश्मीर के ख़िलाफ़ नहीं, मुसलमानान हिंद के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही है, सबको एक प्लेटफार्म पर और मुत्तहिदा प्लेटफार्म पर और मुश्तरका दुश्मन के ख़िलाफ़ एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है। तब जाके हम इंशाअल्लाह हम कामयाबी से हमकनार हो सकते हैं। क्या मैसेज रहेगी व्यूअर्स के लिए जो उम्मत मुस्लिमा है, आपकी क्या मैसेज रहेगी लास्ट में कि इत्तेहाद के हवाले से? हम बस इतना कह सकते हैं कि जहाँ तलक हो एक ही रास्ता, वहाँ तलक तो साथ चलो। शुक्रिया नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जो कि कश्मीर के शालना के वस्ते गांव डिस्ट्रिक्ट बडगाम से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने अच्छे तरीके से आज हमें यहाँ पे इत्तेहाद का मौजू बयान किया। लेते हैं आज के प्रोग्राम से रुखसत। खुदा हाफिज़।